Good morning, students. So, dear students, as you know that determination of income and employment chapter is going on. Okay. So, today from this chapter, I will discuss about the term APC, that is average propensity to consume, and about saving function. Okay, and also about the main components of aggregate demand. Okay, so dear students, in our previous classes I have discussed about the term MPC, then what is consumption function, then about the term aggregate demand and aggregate supply. Okay, so now हम लोग को तो पता है कि what is aggregate demand, then what is aggregate supply, and what is consumption functions, and also about MPC हम लोग को पता है. ठीक है, so now मैं अभी डिस्कस करूंगी about the term saving function and also about the term APC. Okay, so please concentrate on your class and listen my words properly. So this chapter is actually from macroeconomics. Okay, so your students, APC, that is average propensity to consume, and then MPC, that is marginal propensity to consume. Okay, so about MPC I have discussed. Okay, so now APC क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे. So APC shows the ratio of what, किसके बीच में रेशियो शो करता है, कंजम्पशन एंड इनकम के बीच का जो रेशियो होता है वो शो करता है. ठीक है, तो दैट इज C by Y. So as you know that C stands for what? C stands for consumption. C stands for consumption and Y stands for what? Y stands for income. Okay, पकड़ लो, national income. Okay, so it shows the ratio. क्या रेशियो शो करता है, कंजम्पशन एंड इनकम का क्या रेशियो शो करता है, कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में जो रेशियो होता है वो शो करता है. मतलब एपीसी का मतलब होता है हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं. एपीसी दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, सो वो क्या शो करता है कि हम लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं. ठीक है, हमारा इनकम तो कुछ होगा, डेफिनेटली सबका इनकम होता है, तो हम लोग कितना कंजम्पशन कर रहे वो एपीसी शो करता है. ठीक है, सपोज देखिए आप लोग एपीसी का फॉर्मूला क्या है, पकड़ लो, सॉरी आप लोग पकड़ लो, C इज इक्वल टू 1000. Okay, your consumption. ठीक है, and your income, that is national income, is also 1000. So if both consumption and income are same, then आपका एपीसी का वैल्यू क्या होगा. देखिए एपीसी इज इक्वल टू C by Y. So C का वैल्यू कितना है, 1000. Okay, then Y का वैल्यू कितना है, 1000. So the value of APC is equal to 1. If अगर आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, अगर इनकम एंड कंजम्पशन इक्वल है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट इज देखिए अगर आपका कंजम्पशन पकड़ लो 800. ओके, एंड योर इनकम इज 1000. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीसी, 800 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, तो वो क्या होगा आपका 0.8. ओके, सो इफ कंजम्पशन इज मोर देन योर इनकम, देन द वैल्यू ऑफ एपीसी इज लेस देन, तो वो क्या है, एपीसी इज लेस देन 1. ठीक है, और वहां पे क्या है, एपीसी इज इक्वल टू 1. ओके, सो मतलब वो शो कर रहा है कि हमारा इनकम कितना है, 1000 में हम लोग कितना कंजम्पशन कर रहे, मतलब कितना कंज्यूम कर रहे, एपीसी वही शो करता है. ठीक है, हमारा गिवन लेवल ऑफ इनकम में हम लोग कितना कंजम्पशन कर रहे वो एपीसी शो करता है.
ठीक है। सो उसका नाम क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपका इनकम बढ़ भी सकता है, आपका इनकम कम भी हो सकता है, ओके। सो वो अल्टीमेटली इन सिंपल वर्ड वो क्या शो करता है, कितना हम लोग कंजम्पशन करें, ठीक है। तो आई होप वो जो कॉन्सेप्ट है एपीसी का आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज components of aggregate demand. So as we know that aggregate demand means total demand for final goods and services, ठीक है। So next is aggregate demand. AD means what? AD means aggregate demand. Aggregate demand. So the full form of AD is what? Aggregate demand. So what is the component? C plus I plus G plus X minus M. All these are the components of aggregate demand. Okay, so here C stands for consumption, okay, and then I stands for what? Private investment, then G stands for government investment, and then X stands for what? Export, okay, and M stands for import, okay. So all these are the, वो क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया है आपका। वो क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का आया या फिर आपका 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है, ठीक है। सो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, देन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर है वो। देन एक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक्सपोर्ट, एंड एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट। सो प्लीज 1 मिनट। Sorry. So consumption made by whom? Consumption made by household sector, ठीक है, जो कंजम्पशन हम लोग करते हैं, ठीक है। एंड देन इन्वेस्टमेंट, सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर, ओके। इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट sector, okay. So private sector, their main motive is what? Their main motive is profit, okay, profit. So next is government investment. So investment made by whom? Investment made by government, okay. So आप लोग पकड़ सकते हो expenditure on the construction of roads, railways, etc. So in simple word आप लोग बोल सकते हो जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करता है, and their main motive is what? Social welfare, okay. So their main motive is what? Social welfare. गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द कंस्ट्रक्शन, किसके लिए इन्वेस्टमेंट करेगा? रोड का कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवेज का, ब्रिजेस, ऑल these investment are actually made by government, okay. So X stands for export, M stands for import. तो export मतलब क्या है? हम लोग जो सेलिंग करते हैं, सेलिंग ऑफ गुड्स, कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। M मतलब जो परचेज, जो हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, जो कहाँ से खरीदते हैं? बाहर से। तो कितना हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना हम लोग सेल कर रहे हैं फॉरेन बाहर, एंड कितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कितना हम लोग खरीद रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, ओके, एंड कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू, मतलब दूसरे कंट्री को हम लोग कितना दे रहे हैं, ओके। सो ऑल these are the components of aggregate demand,
ओके, सो वो अगर आपका क्वेश्चन आया, what are the main components of aggregate demand? So first you have to write about the definition of aggregate demand, then about the main components. So the main components of aggregate demand are करके वो आपको लिखना है. then आपको बोलना है कि Here C stands for consumption, I stands for private investment, that is investment made by private sector, and their main motive is what? Profit. And then G stands for government investment, that is investment made by government, their main motive is what? Social welfare. X stands for export, जो हम लोग export करते हैं बाहर की country को, sale करते हैं. Then M stands for import करके पूरा explain करके आपको लिखना है. ठीक है, अगर 4 मार्क्स का आया. अगर 2 मार्क्स का आया सिर्फ आपको लिखना है कंपोनेंट्स, वो लिखना है. लिख के सी कंजम्पशन, आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, देन एक्स एक्सपोर्ट, देन एम इज इंपोर्ट. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सेविंग फंक्शन. आई होप वो समझ में आया है आप लोगों को. एंड आपको प्लीज वो जो है आपको होमवर्क करके देना है. ठीक है. सो आपका क्वेश्चन है write the main components of aggregate demand. Okay, so next is, and your next आपका saving function. Okay, so saving function, what is saving function? What is saving function? So saving function, it shows the relationship between saving and income, between saving and income. Okay, so आपका कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है? कंजम्पशन फंक्शन शो करता है कंजम्पशन एंड इनकम के बीच का रिलेशनशिप. तो सेविंग फंक्शन क्या शो करेगा? सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप क्या है. तो हमारा इनकम बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं? सेविंग करते हैं कि नहीं. हमारा इनकम कम होने से हम लोग सेविंग करते हैं कि नहीं. मतलब इन सिंपल टर्म हम बोल सकते हो सेविंग और इनकम के बीच का रिलेशनशिप शो करता है. इनकम बढ़ेगा तो हम लोग क्या कितना सेव करेंगे, इनकम कम जाएगा तो कितना सेव कर रहे हैं, तो वही शो करता है वो. ठीक है. सो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम. सो आवर that is APS. APS is, that is average propensity to save. Average propensity to save. So that is आपका symbolically that is S by 1. So here S stands for saving and Y stands for income. ओके. सो सपोज मतलब इन एपीएस मतलब कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब हम लोग कितना सेव कर रहे हैं, तो वो क्या कर एपीएस शो करता है. ओके. सो सपोज एपीएस इज इक्वल टू एस आपका है सेविंग. आप जितना इनकम करेंगे उतना तो आप सेव कभी नहीं करेंगे. तो सेविंग एंड इनकम, तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम, वो कभी नहीं होगा. ठीक है. जितना आप इनकम कर रहे हो उतना आप सेव करेंगे क्या? नहीं. तो आपका सपोज योर इनकम इज 1000 एंड योर सेविंग इज 500. ओके. सो S is 500 and Y is 1000. ठीक है. तो वो आपको निकालना है. मतलब आपने 50% ऑफ योर इनकम आपने क्या किया? सेव कर दिया. ठीक है. तो एपीएस का मतलब बोथ सेविंग एंड कंजम्पशन वहां पे क्या होगा? इक्वल नहीं होगा. बोथ सेविंग, जैसे कि आपका एपीसी में 1000 अगर सी है, फॉर्मूला क्या है? C by 1 एंड Y भी आपका 1000, तो वहां पे 1 हो सकता है. ठीक है. जितना आपने इनकम किया उतना ही आपने कंजम्पशन कर दिया, खा लिया सब पैसा. ठीक है. लेकिन सेविंग में ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है. जितना आपने सेविंग में क्यों नहीं हो सकता है? जितना आपने इनकम किया उतना आप लोग सेव कर सकते हो. नहीं ना, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ आपको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ एक अमाउंट से
कुछ तो खाना पड़ता है कि नहीं? कुछ तो चलना पड़ता है, खाना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। तो कंज्यूम आपने कुछ किया तो सब तो सेव नहीं हो सकता। तो द वैल्यू, कभी उसका वैल्यू मतलब 1 नहीं हो सकता है। एपीएस इज इक्वल टू 1 वो रॉन्ग, ठीक है, कभी भी इट कैन नेवर बी 1। समझ में आया? सो डियर स्टूडेंट्स, वो आपका एपीएस है। सो नेक्स्ट, आज का हम लोग इतना ही छोड़ते। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तो कंजम्पशन फंक्शन का जो डायग्राम होता है वो शो करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस मच, थैंक यू।